Good morning, student. This is Dilip Misra from SBIC Inter College, Gagarghat, Bhagna. Students, I hope you are all good at your home and your family members are also good. In this great problem that you are facing in COVID duration, the most things that are interrupted, that is your education. And you are trying to get your education through the different sources. You are trying to read with the help of your books, with the help of your mobile. You are taking online classes. So we are trying to provide you your syllabus, your online classes. Today we will study summarizing for class 11. What is summarizing? Today we will try to know what is summarizing. It's a new things for class 11th students, because before 2 years it was not in your syllabus, but in 2021 NCERT provides you a new syllabus, and in that the chapter summarizing are improved by the NCERT, and it is related with your writing skill. How will you write your views, your thoughts? So summarizing means short writing. Otherwise, we can say that word summarizing is the selection and brief notes of the passage. Suppose that you have one passage, two passages, and I said to you that write the summary of the lesson, write the summary of the passage. Then what will you do? Will you copy that passage line by line? Will you copy that lessons line by line, passage by passage? No. So, summarizing is the selection and brief notes of the passage. Summarizing is an important studying skill, or we can say that it is a shortened version of a passage. It is a shortened version. Means ये छोटा वर्जन है, हमने इसको छोटा करके लिखा है in one's own words, अपने शब्दों। स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, उसे अपने शब्दों में राइट कर दिया है, खुद लिख दिया है। जो पैसेज या जो लेसन्स राइटर के वर्ड्स में राइट करके हमारे सामने प्रेजेंट किए गए थे, उसको हमने क्या किया, अपने में अपलोड कर दिया, अपने अकॉर्डिंग बना लिया। A summary always covers the essential points of the original passage. Summary always covers, एक जो summary होती है ना, वो always covers मतलब पूरे parts को cover करती है। The essential points, जो इसके important points होते हैं उस passage के, उसे cover करती है in the original passage। जो मेन पैसेज होता है, पैसेज की जो थीम्स होती है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, उस चीज को समरी क्या करती है, अपने अंदर इंक्लूड कर लेती है। स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन, आफ्टर द स्टडी ऑफ दिस लेसन, व्हेन आई विल फिनिश माय लेसन, देन व्हाट विल यू लर्न? What is
the sense of teaching this lesson, you will be able to, first, you will be able to define summary. When I will finish this lesson, you will be able to define summary. You will be able to list the step of the creating a summary. You will be able to create a sample of a summary. Your writing skill will be developed after completing this lesson. What we can use in summary? वो कौन सी चीजें हैं जो हम समरी में यूज करेंगे? स्टूडेंट्स, दैट skill is to sum up information. If you are creating a summary, then your first point will be to sum up information, to present information consciously, to state the main or essential points without any details explanation. Students, you will not write detail, you will not do explain the passage. Suppose that before 2 years you were facing reference contest and explanation for 6 marks, but in this new courses that are not included in your course, then आपको एक छोटा सा पैसा दिया जाता था और आपसे कहा जाता था कि बेटा आप एक काम करिए, इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन राइट करिए। रेफरेंस में आप क्या करते थे? उससे रिलेटेड जो संदर्भ होता था वो लिख देते थे। कॉन्टेक्स्ट जो प्रसंग होता था, जो थीम्स होती थी वो लिख देते थे। और एक्सप्लेनेशन में हम उसको जितना खींच सकते थे, जो हमारी एबिलिटी थी, जितना हम उसको खींच सकते थे उतना खींच करके रख देते थे। यहां पे एक्सप्लेनेशन से जिसका कोई रिलेशन नहीं, देयर इज नो रिलेशन ऑफ द समरी विद द एक्सप्लेनेशन, बट वी कैन रिलेटेड इट विथ कॉन्टेक्स्ट, नॉट टोटली बट वी कैन रिलेटेड। हम सिद्ध कर सकते हैं किससे? कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो ये कह रहा है टू स्टेट द मेन और एसेंशियल पॉइंट्स विदाउट एनी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। मेन पॉइंट्स जो भी हैं या जो भी एसेंशियल पॉइंट्स हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आवश्यक पॉइंट्स हैं, उसे बिना किसी डिटेल एक्सप्लेनेशन के हम राइट करेंगे टू रिफर टू द बॉडी ऑफ वर्क। इफ यू हैव दीज पॉइंट्स, देन that will be help to write a summary. After this video you will find a PDF that will be first passage and after that their answer. Students, important points for summarizing. What is the important point? What is the things when we will write a summary of the passage or a summary of the lessons? What things we have to be careful? First is read the passage carefully. Students, it's a very important point. It's a very important point for the summary that reads the passage carefully. That what is written in this passage, इस पैराग्राफ में क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है, क्या बताया गया है। इसलिए हमें पहला काम जो करना है वो ये करना है कि हमें पैसेज को ठीक ढंग से पढ़ना है, केयरफुली। ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ है स्लीपिंग और हम उसको पढ़ रहे हैं रीडिंग। ऐसा नहीं लिखा हुआ है दाऊ, हम उसको पढ़ रहे हैं थॉट। तो ये अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उसकी सही समरी नहीं रहेंगे। इट्स नॉट इजी फॉर
a teacher, otherwise for students to write the summary of these kinds of passages. Then you have to be very careful for the summary, for the passage, for the words meanings, for the vocab. If you are not careful, then you cannot write summary of the passage. Your second thing is, while reading, understand important ideas and underline them. जब तुम बोलो अच्छा बोलो बोलो सब किसी की हिम्मत नहीं है चलो है फाल Students, we are explaining the second point, that is, while reading, understand important ideas and underline them. Means जब तुम read करते हो तो understand important ideas, means उस पैसेज में क्या चीजें कही जा रही हैं, उस पे कौन से आइडियाज एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, उसे आप अंडरस्टैंड समझते रहिएगा एंड अंडरलाइन देम, और उन्हीं पॉइंट्स को आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको समरी की लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, व्हाइल रीडिंग अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट आइडियाज एंड अंडरलाइन देम। जब भी आप पैसेज को पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे, जो भी उसके मेन पॉइंट्स हैं उसे आप समझने के लिए अंडरलाइन करते चले जाएंगे। फिर जब दोबारा ऐसा ना हो कि जब आप लिखने जाए समरी तो आपको फिर से पूरा पैसेज पढ़ना पड़े, इसलिए आप क्या करेंगे, तुरंत ही उसे अंडरलाइन कर लेंगे, या आप हाइलाइटर रखेंगे अपने पास और उसे हाइलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट, आई एम राइटिंग द वर्ब्स। स्टूडेंट्स, ये जो राइटिंग वर्ड है इसका मतलब होता है संक्षिप्त करना, छोटा कर देना, शॉर्ट कर देना, संक्षिप्त करना। ठीक है, तो जो वर्ब्स है हमारे उसे हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, छोटा कर देंगे। मींस जो लंबे लंबे बड़े बड़े सेंटेंस हमारे पैसेज में दिए रहते हैं, हम वो बड़े बड़े सेंटेंस नहीं लिखेंगे, उसे हम शॉर्ट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखेंगे। नेक्स्ट, examples should not be used. Students, note making and summarizing
देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एग्जांपल्स शुड नॉट बी यूज्ड, मींस जिस समय हम समराइजिंग कर रहे हैं उस समय हम कोई भी एग्जांपल यूज नहीं करेंगे। हमें कोई भी एग्जांपल का प्रयोग नहीं करना है। हमें ये नहीं दिखाना है कि बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे और उनके साथ ऐसी घटना घटी थी, आज हमारे जो राजा हुआ करते हैं ऐसी घटना घटी। मींस कोई भी एग्जांपल से हमारा कोई ऐसा समराइजिंग में नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, डोंट रिपीट एनी आइडियाज। स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है समराइजिंग करते समय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। डोंट रिपीट एनी आइडियाज। आप किसी भी आइडिया को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। आप बोर्ड एग्जाम देने नहीं बैठे हो कि एक लाइन लिखा, फिर दूसरी लाइन लिखा, तीसरे में फिर वही फर्स्ट वाली है, फिर सेकेंड वाली है। कई बार हम लोग बोर्ड की कॉपियां चेक करते हैं तो हम लोग को ऐसे मिल जाते हैं कि एक ही लाइन को स्टूडेंट्स ने रिपीट किया कई बार, कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया, उसी को बार बार लिखना है। देन डोंट रिपीट, लर्न इट। डोंट रिपीट एनी आइडियाज। किसी भी आइडिया को हम रिपीट नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं। नेक्स्ट, अवॉइड एक्सप्लेनेशन। अवॉइड एक्सप्लेनेशन, आपको क्या करना है? एक्सप्लेनेशन से बचना है। मैंने आपको बताया ना कि किसी भी चीज को हम लंबा नहीं खींचेंगे, खींचते चले जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइंस बनती चली जा रही है, नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं देन यू आर नॉट राइटिंग समरी, यू आर एक्सप्लेनिंग ऑन दैट मैसेज। क्लियर? तो नेक्स्ट है अवॉइड एक्सप्लेनेशन। आपको एक्सप्लेनेशन से बचना है, एक्सप्लेन नहीं करना है किसी चीज को। ठीक है? समरी के लिए ध्यान रखना है, आपको मैक्सिमम 2/3 यूज करना है, पैसेज का 2/3। ठीक है? जैसे अगर पैसेज आपका 6 लाइन का है तो आपकी समरी होगी ऑफ 2/3, मैक्सिमम 4, मैक्सिमम। क्लियर? आई होप आपको ये टॉपिक ठीक ढंग से समझ में आया होगा, और इसी के साथ मैं अभी आपको एक समरी एग्जांपल का पीडीएफ भी सेंड दूंगा, आप समझिएगा। अगर आपको स्टूडेंट्स इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम है, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द समरी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक्स।